It's an eminent pleasure of mine to welcome the guest speaker for the day and our mentor. Although words would be short for it, but let me introduce you to Mr. Sajan Galani sir. He is actually a world-renowned hypnotherapist. Sajan Galani sir is a honorable member of the Hypnosis International Board of certified by Hypnodyne Foundation USA. He's an educator, hypnotist, successful entrepreneur, and a performance consultant to various organizations, individuals, and professional sport teams. He inspires and informs people, helps them to realize their true potential. He has taken his dynamic personal message all over the country, and his common sense approach and deeply held his beliefs have motivated countless people, thousands to re-evaluate their attitudes. His understanding and experience has helped people on the path of personal growth and fulfillment. We once again extend a very warm welcome and wholehearted thanks to you, sir. Looking forward and excited to learn and experience new things from you, sir, today only. Definitely, without fail. Thank you. Great. Tanmay, would you not like to share that you are one of the pupils who has learned hypnosis 2 days course from Sajan Bhai Sahab? Tanmay, you have also done this workshop. Yes, sir. Yes, yes, sir. Pretty much. He has done. His younger brother. I will like to tell you, his my younger son Chinmay. He, if you remember, you took a workshop about 2 years back in Bhopal, and that time Chinmay was preparing for his JEE. My younger son, he took your course, and he got through in the very first attempt. Oh, so lovely, lovely. You are the mentor for my whole family. Me, myself, my both sons, and Meena ji also is here in this group. She is also. Meena ji, I saw Meena ji. How are you, Meena ji? Kaisi ho aap? Everything fine? So now, namaskar. We are so excited to be with you today. Thank you. Amazing, amazing. Now, before, you came to Bhopal, and that time whole of the family was with you, and we learned quite many things with you. And it is always very nice, always a pleasure to be with you. Thank you. Welcome. Thanks a lot. Great. Before I hand over to you, Bhai Sahab, I would like to welcome the session chair today, Dr. Srikanth Singh. He is a great philosopher. I call him philosopher because he has 2 PhDs. One of them is in philosophy. And whenever we are stuck with any theoretical explanation, we go to him कि sir बताइए इसका क्या है कैसा है. He will open scriptures from his mind, virtual dictionary and library, and will start the whole thing. So he is there. Thank you, sir. आपका स्वागत है. और आपसे भी हम अंत में सुनेंगे, है ना? Definite. ठीक है, सिंह साहब शुरू करें आपकी अनुमति से एज ए चेयर. जी सर. जी, चलिए आप भी एक बार स्वागत बोल दीजिए भाई साहब को. नहीं सर, आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन. Thank you, sir. Thank you very much. Now it's all yours, Bhai Sahab. Please go ahead. Please go ahead. Definitely. Thank you. Sure. तो शुरू करते हैं. Welcome to the world of hypnosis. I'm sure everybody is there. जिनका अगर वीडियो ऑन नहीं है उसके बावजूद भी आपको हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी और इसके बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं आज, बड़ापन है डॉक्टर अग्रवाल का कि उन्होंने कहा कि प्लीज ये जो हमारा होने जा रहा है प्रोग्राम, उसमें आप ये सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में कुछ बताएं और हिप्नोसिस के बारे में कुछ खुलासा करें ताकि कि लोगों को जो गलतफहमी है इसकी, वो जो फिल्म में फंडे बैठे हुए मेरी आंखों में देखो और सो जाओ, हट जाए। वो जाहिर है कि इस नाम को सुनते ही हमें दिमाग में एक ही चीज आती है कि मेरी आंखों में देखो और सो जाओ, लेकिन ये हकीकत नहीं है। पिछले 25 साल से मैं ये हुनर सिखा रहा हूं दोस्तों, 25 इयर्स मैंने पूरा अपना 25 इयर्स पूरा डेडिकेट किया है इस हुनर के लिए, ताकि कि मैंने 15 साल पहले एक प्रण भी लिया था कि आने वाले वक्त में हर एक दूसरे घर में एक हिप्नोथेरेपिस्ट होगा, जिसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि ये साइंस को अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो जिंदगी में 90% जो बीमारियां हैं
वो जान जाओगे कि वाकई मानसिक है, साइकोसोमैटिक। मैं आज ऐसी ऐसी बातों का खुलासा करूंगा कि वाकई में आप जानोगे कि इस हुनर को हमने इस्तेमाल तो किया है, हमने इस्तेमाल किया है अपनी जिंदगी में, लेकिन न जाने हुए। और आज के बाद जानकर इसका इस्तेमाल करो। ये मेरा दावा है कि जाने से पहले यहां से आप जान लोगे कि हमारे पोटेंशियल्स जो वाकई में हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ साथ चल रहे हैं, और जो हमारा बिलीव है उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ को चलाते हैं, क्योंकि वो भी बिठाया गया है। हिप्नोसिस अब से नहीं, 14 सेंचुरी से, मैं बात कर रहा हूं 14 सेंचुरी से। पर्शियंस, इजिप्शियंस, रोमन्स यूज करते थे हीलिंग पर्पस के लिए। आज भी डेंटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पेनलेस टेक्निक है। पेनलेस थेरेपी के लिए ये एक रामबाण का काम करता है, क्योंकि आज के तारीख में पेनलेस चाइल्ड बर्थ बहुत फेमस है और इसी टेक्निक से हो रहा है। हम इसके नाम से वाकिफ हैं दोस्तों, इसके काम से बिल्कुल नहीं। इसके नाम से मेरी आंखों में देखो और सो जाओ। इसके नाम से कि हिप्नोटाइज करके हम बहुत कुछ करवा सकते हैं इंसान से, इस गलत फहमी को आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंसान अपने ऑडियो को ऑन करके बैठे हुए हैं वो प्लीज म्यूट कर ले, ताकि कि और आवाजें यहां पे ना आए, तो हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकते हैं। नाउ, जब मैंने कहा पर्शियंस, इजिप्शियंस, रोमन्स ने इसका इस्तेमाल किया है, बड़े बड़े ऑपरेशंस इस टेक्निक से हुआ करते थे जब एनेस्थीसिया और क्लोरोफॉर्म नहीं हुआ करता था। आप चेक करोगे कि आज भी अमेरिका में कहीं ऑपरेशंस, कहीं इमरजेंसी ऑपरेशंस इस टेक्निक से होते हैं, एक्सीडेंटल ऑपरेशंस इस टेक्निक से होते हैं। आज भी वो सक्सेसफुल है, क्योंकि ये डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को टच करता है। हमारे लाइफ में मैं आपको बताऊं कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसने आंखें तक नहीं खोली है। आप सबको मैं ये बात बता दूं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप किसी न्यू बॉर्न को अपने गोद में लेकर कहीं ना कहीं आपने बातें की होगी उससे, न्यू बॉर्न बेबी। और न्यू बॉर्न बेबी को आपने जिस वक्त परिचय दिया होगा तो क्या दिया होगा आप खुद जानते हो, कि आपने खुद अपना रिश्ता उसे बताया होगा कि तू मेरा भतीजा है, तू मेरा भांजा है, मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरी चाची हूं, मैं तेरा पिता हूं। आपने ये रिश्ता बताया उसे, जबकि वो उसने अब तक आंखें नहीं खोली है। द वेरी फर्स्ट डे हिप्नोसिस उसके लाइफ में एंटर करता है। प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और ये प्रोग्रामिंग चलती रहती है। और 3 साल की उम्र के बाद जब बच्चा वाकई में जान लेता है, कुछ पहचान लेता है, जिंदगी का एक सफर शुरू कर रहा है, तो उस वक्त से लेकर 18 साल की उम्र तक, ये अमेरिका की सर्वे है कि कम से कम उसे 1,45,00,000 बार कहा जाता है कि ये मत कर, वो मत कर, ये सही है, वो गलत है। तो इंडियंस का क्या हाल सोचिए, सोचिए इंडियंस का क्या हाल। 10 गुना ज्यादा हमारी प्रोग्रामिंग जो की गई है बचपन से, जो विरासत से मिली है, बड़े बुजुर्गों हमें जो दिया है, हमने उसे एक्सेप्ट किया है, और हमने उसे एक्सेप्ट करके हमारे बच्चों को दिया, और हमारे बच्चे भी आगे चल के यही प्रोग्रामिंग देंगे, क्योंकि हमेशा हमने कहा है कि बड़े बुजुर्ग गलत नहीं है, उनकी टीचिंग गलत नहीं है। पर हमें यह नहीं पता कि जो विरासत में उन्हें मिला है, आप चेक करो, वो 95% नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। हर एक इंसान यहां बैठा हुआ बचपन में डेफिनेटली उसने सुना है कि बारिश में मत भीगना वरना जुकाम हो जाएगा। दावा है बच्चे ने सुना है, और पहली बार में बच्चा बिल्कुल बारिश में भीग के जब आता है तो जुकाम नहीं होता उसे, लेकिन मां उसे जरूर कहेगी कि कहती हूं जुकाम हो जाएगा। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। Everybody can hear me well? Everybody, my audio is okay with you all?
Yes, sir. गुड। और उसके बाद क्या होता है कि 5वीं बार बच्चा जब भीग के घर आता है तो छींकते हुए आता है और मां कहती है, देखा मैंने कहा ना जुकाम हो जाएगा। और वहां से उसका डर शुरू हो जाता है कि बारिश में भीगने से जुकाम होता है। हर इंसान कमाने में जब कमाना शुरू करता है और कमाना शुरू करने के वक्त कहीं ना कहीं ये कहता है कि यार जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि कमाने में दिक्कतें इसलिए आती हैं कि बचपन से ही उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। पैसा कमाना आसान नहीं है। बचपन से ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में बातें डाली गई हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है, इसीलिए आज भी दिक्कतें आती हैं। ये सारी प्रोग्रामिंग सोचो कि हमने आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपके लाइफ में कई ऐसी बातें होगी जो आपको कही गई होगी, उस वक्त आपने सिर्फ ये कह दिया होगा कि यार बोलना नहीं चाहिए था, और ये बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बातें हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो भगवान है। हमने कभी उसके बारे में जाना नहीं है, उसको पहचाना नहीं है, हमेशा कॉन्शियस को इंपॉर्टेंस दिया है और सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा निग्लेक्ट किया है। हम नहीं जानते कि वो एक ऐसा भगवान है जो हम कॉन्शियसली उसको देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जब हैमरिंग होती है बार बार तो एक्सेप्ट होता है हैमरिंग के बाद, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हमने कभी ये जाना नहीं और 95% नेगेटिविटी उससे दे दी। 95%, क्योंकि इसका एक ही काम है, चाहे आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव, उसे कहना है तथास्तु। एक बार उसके पास बात पहुंच गई, वो तथास्तु करता है। और हमने लाइफ में क्या दिया है आप खुद जानते हो। हमारे लाइफ में ये ऐसी टेक्निक है, अमेरिका और ब्रिटेन ने इसको नंबर 1 का खिताब दिया है इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ड्रगलेस थेरेपी है। और हमारा हर एक कदम, चाहे वो अपने हेल्थ के तरफ हो या चाहे वो अपने सक्सेस के तरफ हो या कोई भी ऐसी बात हो हमारे जिंदगी में जो हमारी ग्रोथ को देता है, हिप्नोसिस का वहां पे हाथ है, सबकॉन्शियस का वहां पे हाथ है। नोइंग अननोइंग, मैं आपको बताता हूं, आपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल किया है, लेकिन अननोइंगली इस तरह से किया है कि बात सही तरह से वहां पहुंची नहीं है। और कैसे उसे पहुंचाया जाए, मैं आपको इस वर्कशॉप में जो मैं अभी कर रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखाऊंगा। आपको सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आप अपने लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जी सकते हैं। यह मैं दावा करता हूं कि जाने से पहले कुछ लूप होल्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप कहोगे कि वाकई में हमारे से यह गलती हुई है, हमारे से यह गलती हुई है। आप जानते होंगे कि हमारे ब्रेन के 2 भाग हैं। जानते हो, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, जिसके बारे में हमें आपने डेफिनेटली आपने सुना होगा। मैं आपको एक बता देता हूं, एक क्लिप दिखाकर के। लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर जो एनालिटिकल माइंड, नंबर्स, लैंग्वेज, लॉजिक माइंड, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर का काम है, आप समझते हो। और राइट ब्रेन जो इमोशनल ब्रेन है, जो इंट्यूटिव ब्रेन है, जो क्रिएटिव माइंड है, वो देखो कितना कलरफुल है। चेक करो, आपको शायद वो स्क्रीन पर ये इमेज दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फीयर्स, और लेफ्ट देखो बिल्कुल बिल्कुल कलरलेस है और राइट देखो बिल्कुल कलरफुल है। लेकिन इस कलरफुल को हमने कभी सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। 7 साल की उम्र तक ये दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं हर काम में। इसलिए कहते हैं कि हर एक सफल इंसान अपने दोनों ब्रेन भाग का इस्तेमाल करता है, दोनों ब्रेन भाग का इस्तेमाल करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अगर जीनियस का खिताब दिया गया तो इस कारण कि उसने दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर साइमल्टेनियसली 24/7 इस्तेमाल किया, इसीलिए उसे जीनियस का खिताब दिया। और हम
अब मैं हमारे लाइफ में 7 साल की उम्र के बाद जब किताबों का बोझ हमारे कंधों पे आता है तो हमारे राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को स्नब किया जाता है। हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट होती है। कोई अच्छा गा लेता है, तो कोई अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया होता है, तो कई ऐसी ऐसी आर्टिस्टिक टेम्परामेंट ड्राइंग में बढ़िया होता है। कई ऐसी टेम्परामेंट्स इंसान के पास होती हैं, वो चाहता है कि उसे बढ़ाए, लेकिन जब वो जिक्र करता है अपने बड़ों से तो उस वक्त उसे ये कहा जाता है कि अभी नहीं बच्चा, बाद में, पहले पढ़ाई में ध्यान दो। उस राइट ब्रेन को स्नब किया जाता है, उसके क्रिएटिव माइंड को दबाया जाता है। और कहते हैं कि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर, हर सफल इंसान दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करता है, और कहते हैं कि हिप्नोसिस ये राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है ताकि कि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर एक दूसरे को हेल्प करें और डे टू डे लाइफ में किसी भी काम में बढ़ावा ले आए। याद करो, आपके पास भी कोई ना कोई हुनर होगा, पर वो हुनर प्रोफेशन में नहीं बदला, क्योंकि आपको हमेशा ये कहा गया कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है और कुछ भी नहीं। आज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में शाहरुख खान और ये जो हंसाते हैं, कई बीमारों को ठीक करते हैं। आज कपिल शर्मा कई लोगों को हंसाता है और कई बीमार लोगों को ठीक करता है। लाफिंग मेडिसिन is also hypnosis. Laughing technique is also hypnosis, क्योंकि हमारे लाइफ में हमने कभी ये नहीं जाना कि हिप्नोसिस सही मानों में है क्या। हमेशा हमने उसे अलग नजरिए से देखा है, हमेशा उसे जादू टोना तंत्र मंत्र के नजर से देखा है। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि ये प्योर साइंस हमारे जिंदगी में क्या क्या लाभ दे सकती है। कभी नहीं देखा, बस उसके नाम से वाकिफ हुए, उसके काम से बिल्कुल नहीं। हमने हमेशा ये कहा कि आंखों से हिप्नोटाइज करके इंसान किसी को भी वश में कर सकता है। इस गलतफहमी में हमने अपने आप को इस आर्ट से थोड़ा सा महरूम रखा, क्योंकि नाम से सिर्फ वाकिफ हुए, उसके काम से नहीं। आज मैं ये आपको बता रहा हूं क्योंकि आपकी जिंदगी में जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, और सही तरह से जब कोई चीज को इस्तेमाल किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि शब्दों की फेरा फेरी, वर्ड्स कितना महत्व रखती है हमारे जिंदगी में। किस तरह से हमने शब्दों को गलत शब्द अपनी जिंदगी में दाखिल किया अपने लाइफ में, और किस तरह से उसका अंजाम मिला, इसका भी मैं खुलासा करूंगा। तो कहते हैं कि हर सफल इंसान जब ये दोनों ब्रेन भाग का इस्तेमाल करता है और हिप्नोसिस ये राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, ताकि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर एक दूसरे को हेल्प करके जिंदगी में किसी भी फील्ड में हम बढ़ावा ले आ सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। ये है पावर हिप्नोसिस का। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि किस तरह से इस टेक्निक के जरिए हम अपने बीमारियां जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। WHO ने कंफर्म किया है, सब डॉक्टर्स यहां बैठे हुए हैं, डेफिनेटली ये हमसे सहमत होंगे, एग्री करेंगे कि 95% बीमारियां मानसिक है। दे आर ऑल साइकोसोमैटिक, माइंड एक्सेप्ट्स, बॉडी फॉलोज। यहाँ तक कि कैंसर भी साइकोसोमैटिक है, एस्थमा भी साइकोसोमैटिक है, फिजिकल पार्ट प्रॉब्लम होने में भी साइकोसोमैटिक, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और वो बीमारियां बढ़ती चली जाती है शरीर में। आप सोचो, डिप्रेशन वर्ड हमारे लाइफ में कितनी बार हमने इस्तेमाल किया होगा, सोच के देखो। फलाना आदमी ऑफिस में अच्छा नहीं लगता तो वो आदमी को देखकर मैं डिप्रेस फील करता हूं, कई बार बोला होगा। कई बार ऐसी बातों में डोंट डिप्रेस मी भी कहा होगा किसी को, दोस्तों को या किसी को। कभी कभी वाइफ से थोड़ी सी अनबन होती है, यू आर डिप्रेसिंग बोल दिया होगा, और यू डिप्रेस मी बोल दिया होगा। हम ये नहीं जानते कि इस शब्द को हम इस्तेमाल करते करते जो सबकॉन्शियस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो जो भगवान है, वो जो वर्ड्स को हम हैमर करते चले जाते हैं,
आपको नहीं पता कि एक क्रिटिकल माइंड, जिसको क्रिटिकल फैकल्टी कहते हैं, वो सपोर्टर जो हमारा है, जिसको हम फिल्टर भी कह सकते हैं, वो बाईपास हो जाता है। और जब बाईपास होता है तो सबकॉन्शियस के पास बात पहुंचती है, और जब सबकॉन्शियस के पास पहुंचती है तो सबकॉन्शियस से एग्जीक्यूट करता है। ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में बात चली जाती है तो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है, उस पर अमल करना शुरू कर देता है। तो सोचो, डिप्रेसिव 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 वर्ड इस्तेमाल करते हुए जब वो क्रिटिकल माइंड बाईपास होगा और वो इंसान को जब डिप्रेशन शुरू हो जाएगा तो घर का ही सदस्य उसे साइकियाट्रिस्ट के आगे रखेगा, और ये इंसान खुद अपने आप से कहेगा कि यार मेरे लाइफ में ऐसा कैसे हुआ, मैं तो बिल्कुल बेहतरीन लाइफ जीता हूं, मैं तो बिल्कुल साइलेंट अपना काम लाइफ जीता हूं, मेरे से ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये कभी नहीं ये कहेगा कि मैंने ही खुद हैमर किया है कि इसने मुझे डिप्रेस किया, उसने मुझे डिप्रेस किया, ये पर्सन डिप्रेसिव है और ये टॉपिक डिप्रेसिव है। 10 बार महीने में इस्तेमाल करो, साल में 120 बार, सबकॉन्शियस को तथास्तु करने में वक्त नहीं लगाता दोस्तों, वक्त नहीं लगाता। सोचिए, कभी देखा है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और डिप्रेसिव पैदा हुआ? कभी नहीं, कोई बच्चा डिप्रेसिव पैदा नहीं होता। एनवायरनमेंट उसे डिप्रेसिव बना देती है, एनवायरनमेंट उसको डिप्रेस कर देती है, कभी कभी तो उसके पॉस्चर्स उसको डिप्रेस कर देते हैं। आप देखो किस तरह से सैड मूड में कभी बैठो तो डिप्रेशन में आ जाओगे, सैड गाना कुछ गाओ सुनो तो डिप्रेशन में आ जाओगे, पुरानी बातें याद करने लगते हो। हमारे पैर पे हम खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, बड़े दुखी दुखी गाने सुनते हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है कि हम दुखी गाने सुन रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उसकी बातें करना शुरू कर देते हैं, और फिर आंखों में से कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं कुछ बातें याद करते हुए। तो वो क्या हुआ, वो मंजर क्या हुआ, सोच लो। तो जब मैंने कहा कि 95% डिप्रेस, मतलब 95% बीमारियां मानसिक है, हिप्नोसिस 100% रिजल्ट्स देता है। ये अमेरिका की सर्वे है कि 100% रिजल्ट्स देता है 7 सिटिंग्स के अंदर। चाहे आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी की बात कर रहा हूं मैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में 100% रिजल्ट्स देता है। चाहे आप साइको एनालिसिस यूज करें, बिहेवियरल थेरेपी यूज करें, उसकी जो रेशियो है, उसका जो रिजल्ट्स हैं, वो 7 सिटिंग्स में मैं कहता हूं 5% या 10% भी नहीं है जो हिप्नोथेरेपी। और ये अमेरिका की सर्वे, मैंने नहीं कुछ कहा, ये मैं आपको उसका चार्ट भी बताऊंगा कि किस तरह से 93% रिजल्ट्स लाता है हिप्नोथेरेपी इन 6 सिटिंग्स। तो 7 सिटिंग्स में बंदा क्योर हो जाता है। एक लेडी थी जो बिल्कुल डिप्रेस थी, ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ये बात है करीबन 22-23 साल पुरानी। हेलो यस भाई साहब आपकी जो इम्पैक्टफुल जो आवाज है ना, प्राण युक्त, वो थोड़ी कम पड़ रही है। माइक थोड़ा नजदीक कर लेंगे प्लीज, 2-3 लोगों का मैसेज भी है। हाँ, नाउ ट्राई, क्योंकि आपकी आवाज में जो जादू है ना, जो एक 25 साल के प्रैक्टिस वाले हिप्नोसिस की साधना का है, समवेयर वी वर मिसिंग दैट। हेलो, नाउ इट्स बेटर। हाँ, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर ललित ने, आनंदी ने, कई लोगों ने मैसेज भी डाला है चैट में। नाउ इट्स बेटर सर, थैंक यू थैंक यू। अभी आवाज ठीक है? बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया। आवाज अभी सुनाई दे रही है, राइट? क्लियर? ओके। सो नाउ एक लेडी थी जो बिल्कुल डिप्रेशन में थी। इट वाज इन द ईयर 1997। उसने कहा, साजन भैया मेरी जान बचाओ, मैं शॉक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहती। वाकई में दवाइयां ले रही थी, वाकई में डिप्रेशन में चली गई थी। जस्ट प्रोग्रामिंग कि मेरा पति मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा आजकल, मेरा पति मुझे पूछता नहीं आजकल, ये बस अपने आप को बोलती चली जाती थी, और इस तरह से वो डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि उसका पति शायद स्टार्टिंग में उसको आई लव यू बहुत ज्यादा कहता था, और आई लव यू होना उसका कम हो गया, और वो कम हो गया, उसमें डिप्रेशन में चली गई। हालांकि 25 साल शादी को हो चुके थे। अब सोचो, उस लेडी ने कहा कि बस मेरा जो कॉन्फिडेंस है मुझे वापस दिलवा दो। और सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक जो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट किया जाता है, जो 4 घंटे बेहतर नींद का एहसास देता है, और
पैटर्न्स ऑफ लाइफ, हमारे बीमारियां कोई भी हो, मानसिक, जो मैं कहता हूं स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, उसे हटाने में रामबाण का काम करता है। ये ऐसी टेक्निक है कि वाकई में उसने यूज किया, बुरी आदतों को भी ये हटाता है। बुरी आदतें, च्युइंग टबैको से लेकर अल्कोहलिज्म तक, ये काम आता है। 7 दिन के अंदर इसकी रिजल्ट मिलती है हमें, और उसने इसका इस्तेमाल किया, और 8वें दिन वो मेरे घर आई मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए। That lady came to my house saying that मैंने दवाइयां लेना बंद कर दिया है। और वाकई में उस दिन इट वॉज जस्ट एन कोइंसिडेंस कि एक लेडी जर्नलिस्ट, 1998 की मैं बात कर रहा हूं, फ्रॉम न्यू वुमेन मैगजीन मुंबई, मेरा इंटरव्यू ले रही थी हिप्नोसिस के ऊपर। और इट वॉज कोइंसिडेंस, शी एंटर्ड इन एंड शी टोल्ड मी दिस, एंड उसका इंटरव्यू हुआ उस लेडी के साथ, बातचीत हुई उस लेडी के साथ, उसने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस 0 हो गया था सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक से, मैंने दवाइयां लेना बंद कर दी सिर्फ 7 दिन के अंदर। और वो आर्टिकल रिलीज हुई थी, आई कैन शो यू दिस आर्टिकल, दिस वाज रिलीज्ड इन 1998, न्यू वुमेन मैगजीन, माइंड ओवर मैटर, हिप्नोटिज्म कैन रिलीव, करेक्ट एंड क्योर मेनी इल्स ऑफ स्ट्रेस, वेरी मॉडर्न लाइफ, डिस्कवर्स भवानी राव, मेरे फोटोग्राफ्स के साथ कि किस तरह से उस लेडी ने जो कॉन्फिडेंस खोया था पा गई हिप्नोसिस के द्वारा। याद रखना, 4 घंटे की नींद का एहसास मिलता है 10 मिनट के अंदर, और जब जागते हो तो इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि उसके बाद आप 10 घंटे भी काम करो तभी थकान महसूस नहीं होगी। ये है पावर सेल्फ हिप्नोसिस का। आप अपने लाइफ में जिस तरह से जीना चाहते हो, क्योंकि कहा गया है कि हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी तरह से नहीं जीता, वो प्रोग्राम्ड है कि उसको कैसे जिया जाए। प्रोग्राम्ड है, जो बड़े बुजुर्ग ने डाला है उनके दिमाग में, वो प्रोग्राम्ड है कि ये और 25 साल के बाद गृहस्थी, घर गृहस्थी, शादी की लाइफ, मैरिड लाइफ, उसके बाद ये, उसके बाद वो, सब बैठाया गया है सबकॉन्शियस माइंड में। अपनी जिंदगी को अपनी तरह से कैसे जिया जाए, सेल्फ हिप्नोसिस से आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था इन द ईयर 1997 कि दीपक चोपड़ा की टीचिंग, द ग्रू टू बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन को भी उसने सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया था जब वो लीन पीरियड में जा रहे थे। तो किस तरह से हिप्नोथेरेपी जो साजन गलानी करते हैं वो दीपक चोपड़ा के टीचिंग से कम नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई में लिखा था 1997 दोस्तों कि क्या है हिप्नोसिस और कैसे काम कर सकते हैं। उस वक्त जब मीडिया इतनी नहीं थी, सोशल मीडिया का तो कुछ नामो निशान नहीं था, तब हिप्नोसिस के बारे में लिखा गया था, नियरली 24 इयर्स बैक। उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा कि ध्यान की अवस्था तो इंसान पाता है, इन ट्रांस मीन्स ध्यान। यह आर्टिकल रिलीज हुई थी चंडीगढ़ में इन द ईयर 2004 कि किस तरह से इंसान हमेशा मेडिटेशन के बारे में बात करता है, पर ओशो ने कहा आफ्टर मेडिटेशन व्हाट। जब भी वो इंसान मेडिटेट करने के बाद उठता है तो एक ही चीज कहता है कि ध्यान नहीं लगता, चाहे वो 20 साल से क्यों ना कर रहा हो। तो ओशो ने कहा कंबाइन करो मेडिटेशन को हिप्नोसिस से, यू कैन क्रिएट वंडर्स। एंड ये मेरा दावा है कि मैं बताता हूं कि यू कैन रियली क्रिएट वंडर्स विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस व्हेन यू कंबाइंड हिप्नोसिस विथ मेडिटेशन। आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा when you combined hypnosis with meditation। ये है पावर हिप्नोसिस का। Enjoy peace through hypnosis, ब्लिस ने लिखा था मुंबई, ये आर्टिकल रिलीज हुई थी 1997 में कि कैसे आप अपने लाइफ में अपने एज प्रोसेस को स्लो कर सकते हो हिप्नोसिस के द्वारा। और दोस्तों मैं सही कहता हूं कि इस टेक्निक के जरिए आपने अगर सेल्फ हिप्नोसिस शुरू किया, अगर आपकी उम्र 35 भी है या 40 भी है, तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर आप अपनी उम्र से 2-3 साल कम दिखने लगोगे। ये मेरा दावा है। आप अपनी उम्र से ज्यादा यंग दिखने लगोगे। ये मेरा चैलेंज है। I would like to make a comment here. I would like to ask all the participants, what is the age of Sri Sajan Galani in front of you? And none of you would say he is more than 40.
but mind you, he is teaching hypnosis in country and abroad since more than 25 years. So that is the beauty. And all the time, may it be early morning or late night, he is as dynamic as you will find him early morning. That particular impact of self-hypnosis he has brought in, and he is an exemplary example himself. Yeah, Pankaj has written that he is looking 30 years. Bhai sahab, aap 30 saal ke ho. सर मैंने 5 साल की उम्र में हिप्नोसिस मतलब शुरू किया था. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. I am 64 years old, running 65 because 17 November, just 2 days back, I completed 64. I'm running 65. Wow, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया. Thank you, 65 thank you, is thank a you. great thing. And I also remember your birthday. The reason is Mrs. Galani is into my relationship. She is an Agrawal and I have a sisterly relation to her. इसलिए मुझे उनका स्मरण भी रहता है. That's the power. 65 he is, and देखने में, behavior में, impact में, he is like that. And अभी तो ये जो 2 घंटे का सेशन है, he is just going to talk, or maybe he will be able to show some clip of his seminar. When he takes 2 days seminar, everybody goes through a deep somnambulism state, जहां पर वो इंजेक्शन भी देते हैं तो भी पता नहीं चलता, एंड सो ऑन, जो आपने कहानियां सुनी है, बट उसका मिथ को अलग कर देते हैं. भाई साहब की खासियत ये है कि जो एक मन का डर है, अभी भी उन्होंने वही किया, मन के डर को क्लियर किया कि use it as a technique, as a tool, and don't fall prey of all these propagandas की ऐसा हो जाता है. तो वो इंजेक्शन भी देके दिखाते हैं आपको, and that impact he brings in 2 days time. Kamal also looking, he is looking 40 or something like that. Sorry to interrupt, but I couldn't. नहीं, thank you very much. You cleared it out. Thanks a lot. क्योंकि अभी 1997 में ये आर्टिकल जो आपने देखी है, जो आप देख रहे हो, उसमें एज लिखी हुई है 39 years old Indonesian born doctor has experienced a very hard life. और सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, so you can read this also, कि ये आर्टिकल रिलीज हुई है 1997 में. so करीबन 24 साल तो उनको भी हो गए हैं. और ये अब आई एम born 1957, तो आपको पता होगा कि 64 मैंने कंप्लीट किया लास्ट 2 days बैक, एंड आई एम रनिंग 65 नाउ. यंग एज एवर, बिकॉज याद रखना, एज प्रोसेस को स्लो करने वाला ये टेक्निक है. एज प्रोसेस स्लो करता है 100%. ये है कि अमेरिका की एक सर्वे है, उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन का स्ट्रेस इंसान को 1 साल बूढ़ा कर देता है. और साजन गलानी का कहना है कि 2 दिन की खुशियां इंसान को 1 साल जवान कर देता है. तो अगर वाकई में अपने जिंदगी में खुशियां चाहते हो, अपने पास्ट और फ्यूचर को अपने कंधों से हटाना चाहते हो, प्रेजेंट में जीना चाहते हो, क्योंकि हमने प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट और फ्यूचर को बहुत गले लगाया है, इसीलिए हमारे कंधे झुक गए. अगर इसे आपने अपनाया अपने लाइफ में, आपको मैं जो ये हुनर देने जा रहा हूं, आई प्रॉमिस कि आप इस हुनर को अगर आपने एक्सेप्ट किया, आपने इस हुनर पे वाकई में इस्तेमाल किया अपने लाइफ में, तो मैं दावे के साथ एक बात बताऊंगा आपको कि आपके लाइफ में आप कभी भी अपने लाइफ में खुश रहोगे, क्योंकि खुशियां बांटना आपका काम हो जाएगा. ये मेरा दावा है. क्योंकि हमने आज तक जब अपने आप को ही 90% खुश नहीं देखा है, स्ट्रेस और टेंशन का जिंदगी जी रहे हैं, तो दूसरों को इंसान क्या दे पाएगा? जब बांटोगे, जब खुद होंगे तभी बांट पाओगे, और खुद होने के लिए इसकी बहुत जरूरत है. मैं कहता हूं आज के तारीख में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि 26 साल 28 साल के लोगों को डायबिटीज हो चुका है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. प्रेजेंट में जीना भूल गए हैं और पास्ट और फ्यूचर को गले लगा रहे हैं. कल देखा तो किसे है नहीं, उसके बावजूद भी उसे गले लगा रहे हैं. इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि एज प्रोसेस को स्लो करना है अपने लाइफ में, अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना है, तो इससे बेहतर कोई भी टेक्निक नहीं है. मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने दावा किया है कुछ बातें समझाकर, क्योंकि ऐसे ही सिखाने से आपको मजा नहीं आएगा. इसलिए मैं आपको क्लियर करूंगा कुछ बातें, और फिर आपके हवाले ये हुनर दूंगा. नहीं तो अगर सीधा हुनर दे दिया तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे और जाके लेकर रख दोगे कि हाँ ठीक है, सीखा है.
पर आपको पता चले कि क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद आप सीखोगे, तब आपको मजा आएगा। मैं आज बिफोर लिविंग फ्रॉम हियर दावा करता हूं आपको ये हुनर सिखाऊंगा। उसके साथ साथ ये आपको क्लियर कर दूं, ये भोपाल में आर्टिकल रिलीज हुई थी, बिना रजामंदी हिप्नोटिज्म असंभव, कोई किसी को वश में नहीं कर सकता, ये गलतफहमी है। इट इज ऑल साइंस, सेल्फ हिप्नोसिस, ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस, ये कहा गया है। और अगर ऐसा होता कि किसी को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर दिया जाए, या किसी को हिप्नोटाइज करके उसे बातें उगलवाई जाए या चीजें ले जाए, तो सबसे पहले बैंक मैनेजर्स हिप्नोटाइज हो चुके होते दोस्तों। बैंक मैनेजर्स, मां अपने बच्चे के कान में पैदा होते ही ये मंत्र फूकती कि बेटा सिर्फ हिप्नोटिस्ट बनना और कोई नहीं, क्योंकि उसी में ही कमाई है। इंडियन गवर्नमेंट मुझे हायर करती कि कितने क्रिमिनल्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनसे बुलवा दो। ये सब गलत फहमी है, कोई किसी को वश में नहीं कर सकता। इस प्योर साइंस को जानोगे तब जाके अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करके जिंदगी को अपनी तरह से जियोगे। तो ना सोचे कि अपनी मेरी आंखों में देखो और सो जाओ, ये फिल्मी फंडे जो हैं वो सही हैं, ये सारे फिल्मी फंडे हैं, गलत हैं। ये साइंस है, और इस साइंस का किस तरह से सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में दाखिल करें, ये मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से अब इंसान का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इंदौर गवर्नमेंट ने मुझे एक दिन के लिए बुलाया था, कंडक्टर्स को हमने हिप्नोटाइज किया था क्योंकि दे वर वेरी रूड टू द पैसेंजर्स। बस कंडक्टर्स रूड थे पैसेंजर्स से। मैंने ये आर्टिकल आपको इसलिए दिखाई है कि आप किसी का भी एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, बिहेवियर चेंज कर सकते हो इस टेक्निक के जरिए। कि हमने 1-1.5 घंटे के अंदर इनको यह सिखाया कि वाकई में अपने पैसेंजर्स से कैसे मुस्कुराते हुए पेश आए। और वही हुआ जब जागने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्हें कहा कि अब हम जानते हैं कि अपने पैसेंजर से किस तरह से मुस्कुराते हुए पेश आए। उसके साथ साथ बिलासपुर में भी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सराहा गया। दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि बॉम्बे से लेके छत्तीसगढ़ तक, एर्नाकुलम तक, और उससे आगे जहां तक मैं जा सका हूं मैं गया हूं, गांव-गांव तक गया हूं, क्योंकि मुझे ये हुनर लोगों को देना था। मैंने 23 साल पहले अपने क्लिनिक को डाउन किया था, बंद किया था, जो मैंने हिप्नोथेरेपी क्लिनिक खोली थी, बिकॉज ऑफ मैंने सिखाना था ये हुनर, ताकि कि इंसान किसी हिप्नोथेरेपिस्ट पर डिपेंड ना हो। तो बहुत अच्छी तरह सराहा गया था। 2016 की आर्टिकल है कि किस तरह से हिप्नोसिस काम आता है और किस तरह से हिप्नोसिस से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपको एक और चीज बता दूं, ये आर्टिकल मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि राहुल द्रविड़, ये प्लेयर, मैं नेता से लेके अभिनेता तक इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वजह है कि मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा नहीं खेल रहे थे मेलबोर्न में, और उसने तुरंत हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करवाया, हिप्नोथेरेपिस्ट को हायर किया, और जब उसका कंसंट्रेशन ठीक हुआ तब वो वापस फील्ड में गए। ये आर्टिकल रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000। सोचिए, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले, आउट ऑफ फॉर्म द्रविड़ सीक्स हिप्नोथेरेपी फॉर हेल्प। 21 years बैक राहुल द्रविड़ ने इसका इस्तेमाल किया। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी पुरानी टेक्निक है। और उसके बाद ये भी आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि 2006 में ये आर्टिकल रिलीज हुई थी। 2007 में मुंबई में दिव्या दत्ता एक्ट्रेस जो हैं, वो अंधेरे से डरती थी, लेकिन उसके भाई साहब जो डॉक्टर राहुल दत्ता है, बड़ी कोशिश के बाद एलोपैथी या कोई और ट्रीटमेंट, उससे इसका इलाज नहीं हो पाया। फियर ऑफ डार्कनेस का इलाज न करने के बावजूद राहुल दत्ता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने हिप्नोथेरेपी, ऑल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल किया, सीखा और बेहतरीन तरीके से अपने बहन का इलाज किया। एंड व्हेन शी वाज क्योर्ड थ्रू हिप्नोथेरेपी, अंधेरे का डर हिप्नोथेरेपी से जब उसका खत्म हुआ, तब राहुल दत्ता ने कंफर्म किया कि वाकई में ये एक ऐसा हुनर है जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण का काम करता है। और इसलिए उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रिस्क्रिप्शन देना बंद, प्रिस्क्राइब करना बंद कर दिया दवाइयों को, और फुल फ्लैश हिप्नोथेरेपिस्ट बन गया। फुल फ्लैश हिप्नोथेरेपिस्ट। अब उसका भाई सिर्फ हिप्नोथेरेपी करता है और लोगों की मदद करता है। उसके साथ साथ
हमने 2000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भोपाल में 2009 में ये सिखाया कि किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए हिप्नोसिस के द्वारा। और वाकई में मैं कहता हूं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है अपनी जिंदगी में, तो एक चीज हमेशा याद रखे कि हर चीज 2 बार आती है दुनिया में। हर चीज पहले वो दिमाग में आती है, जहन में आती है, फिर हकीकत में आती है। वैलिडिटी सेशन होना है 3:30 बजे। सॉरी वी हैव गॉट टाइम और नो? सर अभी तो शुरू ही हुआ है, समय बहुत है। शुरू ही हुआ है अभी तो। हाँ सर कह रहे हैं कि यही आना है। हाँ 3 बजे ही आना है। यस सर, यस अभी सर। बहुत टाइम है ना? हाँ बहुत सारा टाइम है सर, अभी तो बहुत सारा टाइम है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं, आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट दैट आई एम ऑल्सो सिटिंग इन दोज ऑडियंस। वन ऑफ दोज ऑडियंस इज डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल, हु वाज विटनेस टू दिस ग्रेट प्रोग्राम, जहां पर कि भाई साहब ने जो है ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, गोल मैनिफेस्टेशन है, एंकर फॉर्मेशन, हाउ टू गेट रिड ऑफ फोबियाज, ये सारी चीजें इस सेमिनार में बताई थी और 100% टर्न आउट था। एवरीबडी हैड रिपोर्टेड दैट यस नाउ ही हैज लर्नड इट। तो ये मिरेकल जो भोपाल का जो है, आई वाज ए विटनेस टू इट, एंड डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू हिम. And though he has told you that he's 65, which is a fact, but in energy he is 25. So he keeps on moving in and out of the country, Bharat ke andar bahar. The moment you get an opportunity, just grab it, my dear friends, just grab it. And he's so down to earth. Normally the teachers and the trainers of his repute, his level, they charge exemplary amounts, but साजन भाई साहब इस मामले में भी बहुत बड़े दिल के हैं. कहीं से कहीं तक fees is not the issue. So thank you sir. My only thing was to invite him here was to introduce the teachers. I am happy कि अभी 50 teachers यहाँ पर है. You take it to your schools, you take it to your children, because this is a so powerful technique and such a wonderful trainer, tutor available here, the mentor available. That is the very objective. I would request भाई साहब कि अगर संभव डेमो का नहीं हो तो एक हाथ क्लिपिंग छोटा सा आपके पीए को बोलिएगा कि वो जरूर से दिखाए, जिसमें कि हम लोग सोमनाबलिज्म स्टेट में जाते हुए 1-2 लोगों को देखे और उसका इम्पैक्ट मालूम पड़े. मैं करवा रहा हूँ. गजब गजब. मैं करवा रहा हूँ, डेफिनेटली करवा रहा हूँ. मैं पर्सनली अभी करवाऊंगा, हिप्नोसिस करवाऊंगा, मैं काफी कुछ करवाऊंगा, मैं हीलिंग करवाऊंगा. अभी बस ये मैं इसको इंट्रोड्यूस जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं कोई डेमो नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब तक पता चले कि क्या है ये, कैसे काम करता है, तब तक इट्स ऑफ नो यूज. तो ये पता जरूरी है कि कैसे काम करता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का फंडा क्या है. राइट तो मैं पहले कॉन्शियस सबकॉन्शियस के फंडे को क्लियर कर दूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या मेडिटेशन. वी हैव गॉट 1 hour more, nothing to bother. हम लोग को 1 hour और है और 1 hour में बहुत कुछ आपको मिलेगा. राइट सुना. उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, जीनियस इसलिए करवाया गया, ये भी आर्टिकल रिलीज हुई है. और उर्मिला सिंह द गवर्नर ऑफ हिमाचल को भी हमने ये शिमला में जाकर उनकी टीम को ये सिखाया था और उन्होंने ये प्रमाण पत्र दिया था. इट वाज दिसंबर 2011 में और उन्होंने कहा था कि जो साजन गिलानी कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है. हमने उनको भी ये, उनके टीम को भी ये हुनर सिखाया था और बहुत अच्छी तरह उन्होंने ये प्रमाण पत्र दिया था. उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी बाय अमेरिकन हेल्थ मैगजीन जो 38% रिकवरी देता है 600 सेशंस में, और बिहेवियर थेरेपी 72% रिकवरी देता है आफ्टर 22 सेशंस, और हिप्नोथेरेपी 93% रिकवरी देता है आफ्टर 6 सेशंस. ये इसके लिए है कि आप हिप्नोथेरेपी के बाद, और हिप्नोथेरेपी बच्चा अगर 60% लाता है तो 90% लाने का हकदार बन जाएगा. स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन से हटकर बहुत ही चीजें आप कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए जो 7 दिन में रिजल्ट्स लेके आता है. और ये कॉमन एप्लीकेशंस जो हैं, ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कॉमन एप्लीकेशंस हिप्नोथेरेपी के हैं. अब आपको मैं बता दूं कि किस तरह से कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काम करता है. मैंने कहा कि अब हम आपको सिखाएंगे, तो जब सिखाएंगे तो ये कॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस और बीच में जो क्रिटिकल माइंड है उसको किस तरह से बाईपास किया जाता है.
एक क्लिप आपको मैं दिखाऊंगा, उस क्लिप को बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपके साथ सेशन करूंगा. जस्ट सी दिस क्लिप कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड कैसे बाईपास होता है और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, किस तरह से है. जस्ट वॉच दिस क्लिप एंड उसके बाद हम सेशन आपके साथ करेंगे हीलिंग और सेल्फ हिप्नोसिस का. Well, you may already know that hypnosis works with the subconscious part of the mind. So to really understand hypnosis, you have to understand how the mind works. You see, you have two very different minds, the conscious and the subconscious. Two very different minds with different functions. So let's have a look at those functions now. Starting with the conscious mind. This is where we spend most of our time, and it has four functions. The first, willpower. We're all familiar with this part of the conscious mind. With willpower, you might say, I quit, I'm not smoking anymore. And the strength of your willpower decided how long this lasts before the old habit returns. Number two, temporary memory. This part of the conscious mind is your working memory that you use every day. Finding your way to work and remembering your family's names. This is the memory you use every day. Now the third part of the conscious mind, the analytical thought process. This part looks at a problem, analyzes it, and looks for a solution. It makes hundreds of decisions every day. These decisions seem automatic, but are in fact conscious and deliberate. This is where you decide whether to do something or not. Now the fourth part of the conscious mind, rational thinking. This part gives us the reasoning why we do the things we do. In order for us to remain sane, we must be able to rationalize our behavior, even if it only makes sense to us. You can say, I smoke because it relaxes me or calms my nerves, even though cigarettes are a stimulant and it is impossible for them to relax you or calm your nerves. But if you believe it to be true, then it is. Now, the language of the conscious mind is logic. However, the real you lives in the level below the conscious mind, in the subconscious mind. So let's have a look at that part of the mind. The subconscious mind is where you will find habits, not just the good, the bad, and the ugly, but also our practical habits we do without even thinking about it, like answering the phone when it rings, or brushing our teeth, or for some, possibly biting nails, grinding teeth, or twirling hair. Now another part, emotions. Our emotions are also in the subconscious mind, love and hate, etc. And our logical conscious mind has no control over our emotions. It is left to our childlike subconscious mind. This causes the problems that we have with emotions. Now, the third part of the subconscious is the permanent memory. Everything that has happened in your life is recorded here, including the associated sights, sounds, smells, and feelings. And using hypnotic regression, you can relive any memory from your life vividly, even if you do not remember it consciously. Now, another part of our subconscious mind is the security and protective part. This is the number one job of our subconscious mind, our personal security.
Now, the language of the subconscious is imagination. The only communication between the logical conscious mind and the imaginative subconscious mind is that we use willpower to suppress emotions and willpower to control habits. But unfortunately, willpower is temporary, and suppressed emotions get redirected in a negative manner, causes stress, and can cause illness. And in most cases, the habits return sooner or later. Remember, the language of the conscious mind is logic. The language of the subconscious is imagination. When logic and imagination conflict, imagination wins every time. The subconscious mind is the boss. Because the language of the subconscious is imagination, it cannot tell the difference between what is real or true and what is not real or untrue. Because everything is real or true to the imaginative mind. If it believes it to be true, then it is. So let's explain hypnosis now in the simplest of terms. Normally, the conscious mind is in front and the subconscious is in the background. And in between these two parts of the mind is a filter that we call the critical faculty. This part is critical of information before we let it enter our powerful subconscious mind, or our belief system, or our permanent memory. So if I told you something that you thought was crazy, your conscious mind would filter it out and would not allow it to enter your belief system or your programming. However, children from the age of 0 up to 7 years are in their subconscious almost 100% of the time. This is why a child's mind is fertile ground. Whatever seed you plant in it is what is going to grow. So these children do not have the critical faculty yet. So what is hypnosis? Hypnosis is when the conscious mind moves aside and the critical faculty is bypassed, allowing your subconscious mind to become receptive to positive suggestions for change. So these positive seeds or suggestions are planted in your subconscious mind. Now, entering hypnosis happens to you on a daily basis. Hypnosis is a natural state you have experienced thousands of times before. Have you ever felt sad or cried when watching a movie? Well, your logical mind knows it's only a movie, knows it's not real, yet you still feel sad and maybe even cry. Now, why is that? Because the conscious mind has disappeared. You're not thinking about work, family, or kids. That thinking mind has disappeared. That critical faculty has been bypassed and you are in your subconscious mind. So with hypnosis, we do the same thing. We move the conscious mind aside and bypass the critical faculty in order to plant positive seeds of change into the subconscious mind, where they can grow and cause incredible changes in our beliefs, thoughts, habits, and behaviors, and even our health. Clear, everybody? Got it? Now, we are going for healing process now. Healing process may you have to just imagine the white light, God light, and passing through every inch, every nerve, every muscle of the body. Now, this session, you have to just close your eyes, relax yourself. Let me give you the session. Just close your eyes. Don't open your eyes until I ask you to do so.
Are you ready? Everybody? All right? So just close your eyes and we are going for healing session. एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे उसे छोड़िए। एक और गहरी सांस लेते हुए उसे धीरे धीरे छोड़े। मन में सिर्फ एक ही विचार करना है कि तुम्हें अपने फायदे के लिए बिल्कुल शांत और गहरी अवस्था में चले जाना है। मन में सिर्फ एक ही विचार करना है कि तुम्हें अपने फायदे के लिए शांत और गहरी अवस्था में चले जाना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। सर से लेके सर तक पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहा है। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होते चला जा रहा है और आप ध्यान की गहरी अवस्था में लीन होते चले जा रहे हो। और गहरी और गहरी और गहरी। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। ध्यान की अथाह गहराइयों में लीन हो चुके हो। शरीर के नस नस में आनंद आने लगा है। मन शांत 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 होने लगा है। मेरी आवाज को सुनते हुए मेरी आवाज के संग संग और गहरी अवस्था में चले जा रहे हो। और डीप और डीप और डीप। कोई भी दूसरी आवाज आपके लिए मायने नहीं रखती। कोई भी दूसरी आवाज आपके लिए मायने नहीं रखती। मेरी आवाज को सुनते हुए, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए और गहरी अवस्था में लीन होते चले जा रहे हो। और गहरी और गहरी और गहरी। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है।
ध्यान की अथाह गहराइयों में लीन हो चुके हो, मन शांत हो चुका है। अब महसूस करो कि पैरों से लेकर सर तक शरीर धीरे धीरे हल्का होते जा रहा है। हल्कापन शरीर का बढ़ता चला जा रहा है। और हल्का महसूस कर रहे हो। महसूस पूरा शरीर पैरों से लेकर सर तक हल्कापन, हर एक मसल्स लाइट होते चला जा रहा है। लाइट होते चला जा रहा है। बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। और मेरे तीन कहते ही शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। हल्कापन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल हल्का। एक, शरीर बिल्कुल हल्का। दो, शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। और हल्का, और हल्का, और हल्का। और तीन, शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि शरीर बिल्कुल आसमान में उड़ते चला जा रहा है। महसूस कीजिए, शरीर उड़ते चला जा रहा है, उड़ते चला जा रहा है, उड़ते चला जा रहा है। बादलों के बीच पंछियों के संग संग, बादलों के बीच पंछियों के संग संग, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, उड़ते चला जा रहा है, उड़ते चला जा रहा है, उड़ते चला जा रहा है। और मन शांत। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बादलों के बीच पंछियों के संग संग, अब एक बहुत ही बड़ा गेट दिखाई दे रहा है आपको। बहुत ही खूबसूरत सा ये गेट है। इस गेट को खोलते हुए आप भीतर चले जा रहे हो। एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा है।
बहुत ही खूबसूरत बागीचा। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। भीनी भीनी सी खुशबू, रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। और इस गार्डन के वातावरण में मन बिल्कुल शांत होने लगा है। कुछ देर आप इस गार्डन के वातावरण में रहोगे। चारों तरफ हरियाली हरियाली और मन शांत शांत शांत। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ी ही देर में आपको एक मार्बल बेंच दिखाई देगी। मार्बल बेंच, बहुत ही खूबसूरत मार्बल बेंच। आगे बढ़िए उस मार्बल बेंच की ओर। आगे बढ़िए। कुछ देर इस मार्बल बेंच पर बैठ जाइए। कुछ देर के लिए यहाँ मार्बल बेंच पर बैठोगे। बेंच पर बैठते ही आपकी एनर्जी 4 गुना पॉजिटिव हो गई है। मार्बल बेंच पर बैठकर ही आप देखोगे, कल्पना करोगे कि एक ईश्वर की शक्ति, एक व्हाइट लाइट, एक गॉड लाइट आसमान से नीचे उतरते हुए आपके क्राउन चक्र पे घूम रही है। You will see the God light, the divine force light coming down, and you will see the God light on top of your head. आपके सर के ऊपर घूम रही है। ये ईश्वर की शक्ति, ये गॉड लाइट आपके सर के ऊपर घूम रही है। आपके पूरे शरीर को घेर रही है। ये ईश्वर की शक्ति, ये गॉड लाइट आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षित कर रही है। और कल्पना करो कि सर के ऊपर ये गॉड लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है।
ये ईश्वर की शक्ति आपके शरीर में क्राउन चक्र से, सर के ऊपर से आपके शरीर में एंटर करते हुए आपके शरीर के हर एक भाग को, हर एक स्नायु, हर एक ऑर्गन, हर एक नर्व, हर एक मसल, हर एक सेल को हील और क्लीन कर रही है। ये कुदरत की शक्ति जहां जहां से आपके शरीर से गुजर रही है, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, ये हर एक शरीर के पार्ट को हील और क्लीन कर रही है। आप देख रहे हो ये शरीर के हर एक पार्ट से गुजरते हुए हील और क्लीन कर रही है। The God light, the divine force light is healing and cleansing every inch, every nerve, every muscle, every cell of your body. ये God light, divine force light सारे शरीर में हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, हर एक नार्व, हर एक मसल को हील और क्लीन कर रही है। हीलिंग, 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 हीलिंग and cleansing, healing and cleansing, healing and cleansing, healing, 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 healing. The God light, God light, God light, God light, God light is healing and cleansing. The God light, the God light, the God light is healing and cleansing, healing and cleansing, healing and cleansing. ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके शरीर को हील और क्लीन कर रही है। ईश्वर की शक्ति सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक, ईश्वर की शक्ति आपको हील कर रही है। ईश्वर की शक्ति आपको हील और क्लीन कर रही है। अब अपने आप को देखो, देखो बिल्कुल हेल्दी, वाइब्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल हेल्दी हो आप, बिल्कुल हेल्दी, वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और ये पॉजिटिव कल्पना हर दिन मजबूत होती चली जा रही है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और ये पॉजिटिव कल्पना हर दिन मजबूत होती चली जा रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो, वाइब्रेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, वाइब्रेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो। आप बहुत ही खुश हो। और अब अपने कंधों से देखो, कंधों से देखो कि ये नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो नीचे उतरते हुए एक पानी के बहाव के जैसे आपके घुटनों से गुजरते हुए आपके पैरों के तलवों से निकलती चली जा रही है और एक हवन कुंड है, उसमें सुहा होती चली जा रही है। ये नेगेटिव एनर्जी नीचे उतरते हुए एक पानी के बहाव में, एक पानी के बहाव में नीचे उतरते हुए आप उसे देखो, देखो तलवों से बाहर निकलते हुए एक कुंडा होते चली जा रही है।
बिल्कुल पॉजिटिव, हेल्थी, वाइब्रेंट व्यक्ति हो, पॉजिटिव, वाइब्रेंट, पॉजिटिव, वाइब्रेंट। आपने अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष रखा हो, या किसी व्यक्ति ने आपको कभी कोई बुरा सलूक किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, आपके मन को ठेस पहुंचाई है, आप तहे दिल से अब तक उसे माफ नहीं कर पाए हैं, आज इस वक्त उसे माफ करो। हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे को अपने सामने देखो, इमेजिन करो उसे, वो आपके सामने खड़ा है, आप उसे माफ कर रहे हो, हंसते हुए उसे माफ करो। हमेशा हमेशा के लिए अपने कंधों से ये बोझ हटा दो, उसे माफ कर दो। उसे कहो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, उसका हाथ पकड़ के आप उसे माफ कर दो, उसे जाने दो। अब बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मन आपका बिल्कुल शांत हो चुका है, मन बहुत ही शांत, बहुत ही शांत। आपने उसे माफ कर दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शरीर के नस नस में आनंद, मन बिल्कुल शांत। अब धीरे 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 ज्ञान की गहरी अवस्था से वापस चले आओगे। कुछ देर में मैं आपको जगाऊंगा, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। और अब मैं 1 से 5 तक गिनती करूंगा। 5 कहते ही जब अपनी आंखें खोलोगे, बिल्कुल फ्रेश, लाइट, कंफर्टेबल, पहले से बेहतर का एहसास होगा। धीरे धीरे वापस चले आ रहे हो। 1, मन बिल्कुल शांत, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। 3, वापस चले आ रहे हो। 4, और अगली गिनती में जब अपनी आंखें खोलोगे, बिल्कुल फ्रेश, लाइट, कंफर्टेबल, पहले से बेहतर का एहसास होगा। बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, बहुत ही अच्छा। और 5, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथों को मल के आओ, देखो देखो, आवाज मेरी बंद है क्या? Got it, everybody? डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पंकज, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सेल्फ हिप्नोसिस सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और किस तरह से रीप्रोग्रामिंग की जो टेक्निक है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वहां पे आपको ट्रिगर वर्ड दूंगा। और जब भी याद रखना, आप अपने आप को प्रोग्राम करोगे, चाहे वो लक्ष्य प्राप्ति का हो, गोल सेट करना हो, या अपने लाइफ में कोई भी चेंजेस लानी हो, तो हमेशा हमने एक चीज गलती की है कि, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एक चीज हमने गलती की है कि हमने हमेशा भगवान से जो कुछ मांगा है, अपने आप से जो कुछ मांगा है, फ्यूचर टेंस में कहा है। थैंक यू अनिल कुमार। फ्यूचर टेंस में कहा है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जो सबकॉन्शियस माइंड डिटेस्ट करता है, कभी एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा याद रखना।
बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए जो कुछ मांगोगे तभी प्राप्त होगा। अगर बिलीफ सिस्टम तुम्हारा जीरो है और आप सोचते हो कि मैं अपने सबकॉन्शियस से कुछ भी मांग लूंगा, तो आप गलत फहमी में हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ने कहा, यू कैन शेक द अर्थ विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोवाइडेड यू बिलीव इन इट। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा कि अभी इस वक्त किस तरह से हमारे अंदर जो ये इंग यांग एनर्जी है, ये जो ऑरा है, जो हम हमारे लाइफ में मेल फीमेल एनर्जी हर इंसान के पास है और किस तरह से वो हम फील कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड विद दिस एक्सरसाइज। और मैं आपके ऑरा को अभी इस वक्त फील कराकर आपके चेहरे पे पास करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब जी के, थैंक यू वेरी मच। ये ऑरा जो है, ये ऑरा किस तरह से आप फील कर सकते हैं और अपने चेहरे पे पास करेंगे तो 10-15 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपके चेहरे पे एक अलग सा नूर होगा, एक चमक होगी। वो ऑरा जो आपका जनरेट होगा, आप रेपो बिल्ड करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब ऑरा मैच नहीं होता है तो कई काम ठप हो जाते हैं, बिजनेस डील्स खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। इस वजह से ऑरा मैचिंग बहुत जरूरी है। और अपने ऑरा को जनरेट करके आप अपने चेहरे पर जब पास करोगे एवरी डे, तो आपका ऑरा और बढ़ेगा, ताकि कि सामने वाला जो भी आपके सामने खड़ा हो वो आपके ऑरा से प्रभावित होगा। तो ये टेक्निक किस तरह से की जाती है, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ करोगे कि इस तरह से एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं कि हम इस तरह से अपने हाथों को ओके ऐसे बांधेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज एवरीबॉडी प्लीज। मेरे इंस्ट्रक्शंस को, मेरे एक्शंस को फॉलो करें। और फिर ये 2 इंडेक्स फिंगर्स जो हैं वो आप बाहर निकालोगे, दोनों इंडेक्स फिंगर, और इस इंडेक्स फिंगर को आप अलग कर दोगे इस तरह से अलग कर दोगे और बीच में कंसंट्रेट करोगे। सेंटर, इस इंडेक्स फिंगर के सेंटर पे कंसंट्रेट करोगे और देखोगे कि अचानक ये उंगलियां एक दूसरे से आकर्षित होती चली जा रही है। आप देखोगे कि ये एक दूसरे के करीब आने लगी है, एक दूसरे से आकर्षित हो रही है। जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट, ये किस तरह से अपने आप से आकर्षित होती चली जा रही है। और ये दोनों बिल्कुल पास आते 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 ऐसे लग रहा है जैसे कि डोर से उसे बांधा जा रहा है और तुरंत ये एक दूसरे को चिपक जाएंगे। इंग यांग एनर्जी यानी कि मेल फीमेल एनर्जी, हर पुरुष हर औरत के पास होता है ये एनर्जी। और इस एनर्जी को और बढ़ाने के लिए, इस ऑरा को और बढ़ाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। सबका हुआ? एवरीबॉडी आकर्षित हुआ? राइट, गुड। अब हम एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी। अब हमें लगता है कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने के बाद आपको सेल्फ हिप्नोसिस में जल्दी सिखा दूं। याद रखना, जब भी सेल्फ हिप्नोसिस करना हो प्रेजेंट टेंस में करोगे। जो भी कहोगे प्रेजेंट टेंस में, बिलीफ से स्ट्रॉन्ग करके और स्पेसिफिकली, वेरी स्पेसिफिकली। कभी आप सबकॉन्शियस को नहीं जानते, इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली, उसके पास कोई तर्क नहीं होता। तर्क कॉन्शियस को है, सबकॉन्शियस टेक्स एवरीथिंग लिटरली। आप अगर सबकॉन्शियस को कहते हो कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको ये नहीं पता कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बाद जब ये पहुंचाता है तो सबकॉन्शियस को नहीं पता बड़ा आदमी का मतलब क्या है, आदमी को मोटा कर देगा, लंबा कर देगा। सो क्या होता है कि इंसान जब स्पेसिफिकली नहीं बोलता सबकॉन्शियस को, तो उसका मतलब ही अलग ले लेता है। मैं बहुत कमाऊंगा, बहुत कमाऊंगा, क्या सबकॉन्शियस को नहीं पता कमाना क्या है। कमाऊंगा क्या, जिल्लतें भी हो सकती है। बड़ा आदमी बनूंगा, कैसा, लंबा बनना है। एक दिन बहुत बड़ा नाम करूंगा। याद रखना, जिंदगी में नाम भी होता है तो बुरे कामों का भी होता है। दाऊद इब्राहिम का भी नाम है बुरे कामों में। तो रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, तब जाके वो अचीवमेंट होगी। वरना अगर आपने सोचा कि मैं तो बोल रहा हूं, मैं कॉन्शियसली समझ रहा हूं, तो मेरा सबकॉन्शियस भी समझेगा, गलतफहमी में हुआ। कभी ऐसा मत करना जो आप कर रहे हो। अब इस वक्त आपको कॉन्शियसली जो भी कहना है, क्रिटिकल माइंड को बाईपास करना है, तो सोच समझ के, क्योंकि शब्दों की हेराफेरी है ये। कभी भी हम कहते हैं कि काश मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तो गलती कर रहे हो, क्योंकि कभी भी तथास्तु हो सकता है। कभी भी कहते हो कि मैं काश
मैं तुम्हारा दर्द बांट सकूं, इसको ऑर्गन लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों, वो भी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है, ऑर्गन लैंग्वेज है ये। पेन इन द नेक, हियर कम्स पेन इन द नेक, हियर कम्स हेडेक। हम ये नहीं जानते कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ दिनों के अंदर लिटरली ले लेता है और वही इंसान आपके लिए पेन इन द नेक बन जाता है। हम नहीं ये जानते कि हम कह देते कि काश मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं, तो कुछ दिनों के अंदर वो बांटना शुरू कर देते हो आपको नहीं पता चलता। तो सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें और सबकॉन्शियस माइंड उस पर अमल करता है। वो पावर को जानेंगे तब उस पावर को एक्सेप्ट करेंगे, उस पावर को आप विश्वास करेंगे। तो याद रखना, एक नहीं, दो विशेष नहीं, तीन विशेष नहीं, ये कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि आपको कहेगा सिर्फ 3 विशेष। ये कहता है मांगो लेकिन ढंग से, जानो मुझे तब मांगो। ये नहीं कि सीधा अच्छा सबकॉन्शियस माइंड दे देगा ना, बोल दो ऐसा कुछ, बोल दो वैसा कुछ। नेवर डू दैट, बिकॉज इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली, हमेशा याद रखना। तो जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, वो आपको बिल्कुल लिटरली देना होगा सबकॉन्शियस को, तब जाके वो काम करेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज सिखाने के बाद आपको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाकर और फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा। तो सेल्फ हिप्नोसिस में हम एंड करेंगे, पहले हम मैग्नेटिक पासेस को जानेंगे और चेहरे पे पास करेंगे। तो मेरे साथ ही एक्सरसाइज करें सब लोग, प्लीज फॉलो माय एक्शन एंड माय इंस्ट्रक्शंस, एवरीबॉडी। हाथों को इस तरह से रखें और कुदरत से शक्ति मांगे अपने हाथों में। जो ही आप शक्ति मांगना शुरू कर दोगे, दोनों हाथों का भारीपन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आस्क पावर्स एंड यू शैल रिसीव इट। Ask powers and you shall receive it. You will feel the tingling sensation at your fingertips. You will feel the tingling sensation at your fingertips. Feel it. Ask powers. Ask powers. मांगो कुदरत से शक्ति. Ask power and you shall receive it. हाथों में भारीपन शुरू हो गया है, उंगलियों पर झुंझुनाहट होने लगी है। मांगो शक्ति, मांगो शक्ति, मांगो शक्ति। Ask powers and you shall receive it. हाथों का भारीपन बढ़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाओ। आस्क पावर, मांगो पावर। आस्क पावर एंड यू शैल रिसीव इट। मांगो कुदरत से शक्ति, मांगो। आस्क पावर एंड यू शैल रिसीव इट। हाथों का भारीपन और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। उंगलियों पर वाकई में झुंझुनाहट सी होने लगी है। देखो, tingling sensation at your fingertips. Feel that sensation. Feel it. Feel it. मांगो शक्ति, मांगो शक्ति, मांगो शक्ति। और दोनों हाथों को बिल्कुल फेस टू फेस इस तरह से ले आओ। फेस टू फेस, फेस नीचे मत लाना। फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस, नीचे मत लाओ। वेट, वेट। मांगो शक्ति, मांगो शक्ति, मांगो शक्ति। और धीरे धीरे हाथों का भारीपन और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे उसे अब नीचे ले आओ। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे लाते हुए। और अब दोनों हाथों के बीच में ये मैग्नेटिक फोर्स का एहसास करो। जस्ट चेक द मैग्नेटिक फोर्स इन बिटवीन योर पाम। जस्ट चेक द मैग्नेटिक फोर्स इन बिटवीन योर पाम। ये आपका खुद का पॉजिटिव ऑरा है जो आपने अक्यूमुलेट किया है। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आपका खुद का ऑरा है। इट्स योर ओन पॉजिटिव ऑरा व्हिच यू हैव अक्यूमुलेटेड, एंड जस्ट नाउ यू विल पास इट इन योर फेस लाइक दिस। एवरी डे, एनी टाइम, सुबह से लेकर शाम तक आप 10 बार भी करोगे, वेलकम, क्योंकि ये आपके ऑरा को बढ़ाएगा। अपने ऑरा को खुद आप अक्यूमुलेट करके अपने चेहरे पे पास करोगे तो ये आपके चेहरे पे एक अलग सा नूर लेके आएगा, आपका ऑरा बढ़ाएगा। अब हम करने जा रहे हैं सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक। गेट रेडी फॉर इट। और आई एम श्योर यू ऑल आर रेडी। सिर्फ बस मुझे आप आंखें बंद करके, जब तक मैंने नहीं कहा तब तक आंखें नहीं खोलोगे, और मैं आपसे ये वेलकम 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 नेहा सिन्हा, थैंक यू वेरी मच। Okay, now let's go ahead with this session now. Self hypnosis. हमें थोड़ी सी म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, right?
Close your eyes, everybody. अपनी आंखें बंद करें. Slowly open your eyes, feeling light, comfortable, revitalized, feeling very much better than before. So, a very simple and easy technique. एक आरामदेह कुर्सी पे बैठकर और पलंग पर लेटकर अपने आप को बिल्कुल सूचना देते हुए, बॉडी को रिलैक्स करवाते हुए, 10 to 1 काउंट करते हुए, relax, relax, relax is your post-hypnotic trigger word. Auto suggestions देते हुए, when you come out of your trance state by counting from 1 to 3, I tell you this self-hypnosis technique will help you in every way for reprogramming your subconscious mind. But do it religiously and you will come to know that it really, really gives 100% results. So, Dr. Saab. जी भाई साहब, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर. Thank you very much, Dr. Saab. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Dr. यदि आप अनुमति दे तो हम पार्टिसिपेंट्स को कुछ जिज्ञासा हो तो वो एक दो ले ले. हाँ जी, please. I have given unmute permission, or you can use the chat box, my dear friends. If you have any queries or any suggestions, something, please feel free. I know it will take some time for you to come out of this deep trance state. It really feels very soothing, very relaxing, empowering. Thank you. You win your own self. You awaken your own powers. कहते हैं very true, Dr. Saab. वो अपनी शक्तियां भूल जाते थे, तो जब समुद्र को लांघने की बात आई तो उनको याद दिलाई. तो मुझे लगता है कि वो हनुमान आप और हम है, और हमें याद दिलाने वाले साजन भाई साहब है. Oh, thank you, sir. सर, ये मौका दिया आपने मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आकर रूबरू कुछ सिखा सका. वो पुण्य, वो मुझे भी उसकी दुआएं मिलेंगी. ऐसा भी डॉक्टर अर्चना जी पूछ रही है कि अगर गुस्से में हम हो तो उसको उस वक्त इसको कैसे यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, आप अपने ट्रांस में जाकर देखो. अगर मेडिटेट आदमी करता है तो वो अपने क्या कहते हैं कि ऑटो सजेशंस नहीं देता, ये सोचता है कि एकांत की जरूरत होती है और बिल्कुल शांत से हम लोग मेडिटेट करके बाहर निकले. उस गलत फहमी से मैं आपको बाहर निकालते हुए ये कहूंगा कि जब आप अपने आप को ध्यान की गहरी अवस्था में ले जा रहे हो, उस वक्त ऑटो सजेशंस देना शुरू कर दो कि बिल्कुल आई एम काम कूल रिलैक्स्ड पर्सन, काम कूल रिलैक्स्ड पर्सन. तो क्या होगा? नेवर से कि मुझे गुस्सा नहीं आता, नेवर से कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज आप सबकॉन्शियस को बता रहे हो कि आप गुस्से वाले हो. सो जस्ट फॉरगेट दैट वर्ड, गेट रिड ऑफ दैट वर्ड एंड जस्ट से आई एम काम कूल एंड रिलैक्स्ड पर्सन. बहुत बढ़िया. तो ऑटोमेटिक हर सेशन, हर टाइम जब भी कोई आपको गुस्सा भी दिलाए तो आपका सबकॉन्शियस आपको याद दिलाएगा कि यू आर अ कूल काम पर्सन. क्या बात है, बहुत. करेक्ट. डॉक्टर ललित जी कह रहे हैं आपने तो खुशियां बांटने का और पाने का गुरु मंत्र दे दिया. थैंक यू. दिनेश जी कह रहे हैं वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट. की तो जी ऑनलाइन क्लासेस, ब्रिलियंट एंड नॉलेजफुल सेशन. थैंक यू. एवरीबॉडी इज जस्ट साजन सर की आवाज का जादू ये है साहब जो सब लोगों को छू रहा है. थैंक यू सर, थैंक यू. मिस्टर सेंथा कह रहे हैं कि आज्ञा चक्र वाज एक्टिवेटेड सो वंडरफुली, इट इज स्टिल वाइब्रेटिंग. व्हाट इज इट? सुपर. और ये ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हो. साजन गलानी टाइप करोगे मेरा वेबसाइट खुल जाएगा. साजन गलानी टाइप करोगे तो पूरा मेरा सिनेरियो बाहर आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो. मेरा सब प्रोग्राम्स उसमें आते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी आते हैं. तो मेरा वेबसाइट है वहां पर sajangalanihypnosis.com. भाई साहब, ऑनलाइन में कोई सीमा नहीं पड़ रही है ना, चल रहा है ठीक से? बिकॉज बिल्कुल सर, बिल्कुल. मिस्टर गिरीश पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन और हिप्नोसिस इन दोनों में क्या संबंध है? मेडिटेशन में आप उसको हिप्नोसिस कंबाइन नहीं करते, ऑटो सेशंस कंबाइन नहीं करते. मेडिटेशन में क्या होता है, लेंथी प्रोसीजर है कि आप अपने शरीर के हर एक पार्ट को बैठ के रिलैक्स करवा रहे हो. और फिर विचार जो है, मैं आपको बता दूं कि 16 खरब विचार 24 आवर्स में आते हैं. उसमें से 95% विचार नेगेटिव इसलिए हैं कि वो बिठा दिया गया है, तो बार बार हमने एंटरटेन किया है विचारों को. तो मेडिटेशन के टाइम पे हम विचारों को जो वापस एंटरटेन करते हैं, फिर क्या होता है कि बाद में कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता है. तो हम क्या करते हैं कि जब ऑटो सजेशन को कंबाइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जीरो माइंड हो जाते हो.
क्या बात है। अपने शरीर पर पूरा ध्यान आपका चला जाता है। इसलिए बार बार मैं यूं कहता हूं कि सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दो, मेरी आवाज पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, नहीं, मेरी आवाज पे ध्यान दो, ताकि कि सबकॉन्शियस जो भी सुन रहा है उससे एक्सेप्ट करके अमल करेगा। वो किसी बात को तर्क नहीं करता, वो बिल्कुल एक भगवान आपकी बात को सुनता, उस पर अमल करता है। वो कभी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा क्या सही है क्या गलत है, कभी नहीं करेगा। वो बस टिक मार्क करेगा जो आपने उसे दिया। तो जो बेहतरीन दे सकते हो उसे टिक मार्क करवा दो। क्या मिराकल। Thank you, sir. Thank you. Before I invite Dr. Srikanth Singh, the chairperson of this session, if anyone is having any one query, I can take up on audio. आप लोगों में से किसी की आवाज तो सुनाई पड़े? Is hypnosis related to NLP? Yes, why not? Yes, definitely. But NLP is in conscious level programming, and subconscious level is hypnosis, so which is much beneficial, क्योंकि यहाँ पर conscious बीच में आता ही नहीं है। Conscious सिर्फ मैसेज भेजता है critical mind को bypass करके। Actually, they had a wonderful session. कल ही NLP का बहुत प्यारा सेशन हुआ। राम वर्मा जी को आप जानते हैं? वर्मा जी, जी। राम वर्मा जी के एक शागिर्द है, उन्होंने कल अहमदाबाद के है, उन्होंने लिया था। तो चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हिप्नोसिस लेने में एक गहराई सी सबको महसूस हो रही है। निश्चित बिल्कुल। तो और हमेशा याद रखना, जब भी प्रोग्रामिंग करनी है तो आंखें बंद करके करना जी, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। आंखें खुल के देखो, कॉन्शियसली आप कर रहे हो आंखें खोल के, तो वो ही प्रवचन कितने सुनते हैं हम, बाबाओं के पास कितना जाते हैं, लेकिन वो कितना सबकॉन्शियस में जाता है आपको पता है। तो वो आंखें बंद करके करे तो और मजा आता है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्रीकांत सिंह साहब, सर, चेयरपर्सन, आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स का स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिंह साहब, आपका माइक बंद है सर। And I'm really touched. You are so keen on time कि एग्जैक्ट टाइम के पहले ही आपने, जैसे 2 घंटे का था, एग्जैक्ट आपने सब कुछ कवर किया। सिंह साहब आपका माइक म्यूट है। नहीं, ऑन हो गया। हाँ जी, सिंह साहब। आदरणीय साजन गुलानी जी, प्रोफेसर अग्रवाल साहब, आदरणीय भाभी मीना जी, पुत्रो तन्मय जी, एवं इस सेशन में जो भी दूर से जुड़े हुए मेरे सहभागी हैं, सारे मित्रों, मुझे एक चीज याद आ रही है। पूरा सेशन सुन करके एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं जी, और वो है कबीर जी का दोहा, ज्यों तिलमा है तेल में, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। ये हर व्यक्ति के अंदर जिस हिप्नोसिस की चर्चा करानी जी ने किया, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। और अभी तक मेरा मानना था कि ये विषय केवल फिलॉसफी और साइकोलॉजी तक सीमित है, लेकिन आज मुझे पूरा ये विश्वास हो गया कि यह फिलॉसफी और साइकोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मेडिकल साइंस का भी क्षेत्र है। मेडिकल साइंस डिसिप्लिन के अंतर्गत भी इसकी स्टडी होनी चाहिए। और सच पूछा जाए तो जिस तरह की स्थितियां योग को लेकर के पूरे विश्व में आज मची हुई है, वो स्थिति उससे कहीं अधिक हिप्नोसिस के लिए है। इसका पूरा प्रचार प्रसार, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा अनुशासन होने के नाते हम समझते हैं हर व्यक्ति के जीवन के लिए व्यवहारिक रूप से बहुत उपयोगी है। जिससे न केवल बीमारियां, सबसे आज हम लोग देखते हैं तो युवा तनाव में रहता है। प्रायः अखबारों में या चैनलों में इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने सुनने को मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं कि अमुक स्थान पर तनाव से अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। और अगर ऐसे विषयों की जानकारी होगी और इस प्रकार से फिजियोथेरेपी, हिप्नोसिस से संबंधित फिजियोथेरेपी का जगह जगह छोटे छोटे स्थानों तक ये व्यवस्था कर दी जाए, तो हम समझते हैं तनाव मुक्त समाज के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होगी। वेरी ट्रू।
इसी के साथ प्रोफेसर अग्रवाल साहब को इसलिए बधाई देता हूं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानने के लिए वाल्मीकि और तुलसी की जरूरत पड़ी, क्या बात है साहब, उसी वाह। तरह से मैं तो कम से कम इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ था। अग्रवाल साहब, आपकी कृपा और आपने ये अवसर मुझे दिया, इसके चलते मेरी इस विषय के प्रति गहरी रुचि निर्मित हुई। नहीं तो मैं अभी तक इसको साइकोलॉजी और फिलॉसफी तक ही सीमित जी समझता भाई था। साहब, आज मैं इसे बहु अनुशासनिक विषय के रूप में इसकी आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। इसके और सबसे बड़ी बात है कि साजन साहब ने जिस सरल सहज तरीके से समझाकर विषय को जितने भी प्रतिभागी हैं सबके लिए बोधगम्य बनाया, जी जी जिस तरह से आपने प्रस्तुत की, न केवल सैद्धांतिक पक्षों पर बल्कि इसके प्रायोगिक और व्यवहारिक पक्षों पर भी आपने ध्यान दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी भी भूल प्रशंसा की जाए सब मेरे दृष्टि में कम है। क्या बात है, वाह। अग्रवाल साहब, आपने मुझे थैंक यू। इस सेशन से जुड़ने का अवसर दिया। मैं शुरू से ही जुड़ा रहा। जी मैं भाई था साहब, तो यूनिवर्सिटी में जी 10 मिनट में घर आया, फिर यहाँ से कंटिन्यू जुड़ा ही रहा हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर, और आपके सहज सरल प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू, एवरीबॉडी इज टच। Thank you, साजन Dr. भाई साहब। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यक्तिगत और संस्था की थैंक ओर यू से डॉक्टर साहब, बहुत थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच, और बहुत हम अच्छा आपके- लगा। एंड आपका आज मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपका पढ़ा लव यू, आई सेड बस मेरे को आशीर्वाद मिल गई। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। और मुलाकात करते हैं। बाय एवरीबॉडी एंड हैड अ नाइस सेशन। आपका आगमन बहुत दिन से हुआ नहीं, आपकी बार आए तो हम यूनिवर्सिटी की ओर से भी आपको सम्मानित करना चाहेंगे। और जरूर सर, जरूर। मैं करना चाहते हैं, मेरे पास मैसेज है कई बच्चों का कि सर हम पूरा सेमिनार करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर, मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी एंड लव्ड इट। थैंक यू, क्या थैंक बात यू, है सर, बहुत Thank you. बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू।